Everyone, my name is Sumit Kumar Rana. I am physics faculty in Resonance. So today the chapter that I am going to deal is night sky. Generally जब अंधेरा हो जाता है तो whatever we see in sky, क्या स्काई में अपेयर होता है, that we are going to deal in this chapter. ठीक है, तो देखो आप introduction. If you talk about the introduction, then what is this? The branch of science means I am talking about the astronomy. The astronomy is what? Basically, to read the science, we have divided science in three different categories. The first one is physics, chemistry and biology. In physics, to read the detail of physics, we have divided physics in numbers of category, and the astronomy is one category in which we study about the universe, okay. To study about the universe, what we need? We need a different methods, we need a different instrument. So the instrument or method we used to study the universe is under the astronomy, okay. This is all about the astronomy. Now next, to deal of the heavenly bodies, right? हेवनली बॉडी को डील करने के लिए जो डिस्टेंस की मेजर होती है, बिकॉज ऑल द स्टार हैविंग सिचुएटेड इन अ large distance. To deal that distance, we need to introduce different physical parameters, different physical quantities, means for the distance. So there is a light year. What is light year? Light year is basically the distance traveled by the light in vacuum. Distance traveled by the light in vacuum in 1 year. What is that? Light year. Light year defined as distance traveled by light in vacuum in 1 year. Okay, there is not written in vacuum, but it is for valid for the vacuum, okay, because we generally talk for air and that is same, okay. So as we know, the speed of light in vacuum or in air is 3 into 10 to the power 8 meter per second, that is converted into kilometer. What I said, v equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second, okay. This is the speed of light in vacuum or air, okay. So that I have calculated in this kilometer, okay. This is in kilometer per second, as you can see, that is in meter per second. And the time is, distance is what we write, distance is velocity into time. So velocity is this 3 into 10 to the power 8 meter per second, okay. This is in kilometer. अब देखो ये 3 जीरो हो गया, ये 2 जीरो हो गया, टोटल 5. इस चीज को देख लो, 3 इंटू 10 टू द पावर 5 हो गया. ये किस चीज में है? किलोमीटर पर सेकेंड में है, सॉरी, हाँ किलोमीटर पर सेकेंड में. अब किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करने होंगे? मुझे इंटू 10 टू द पावर 3 करना होगा. तो 10 टू द पावर 3, 5 प्लस 3 दैट विल गिव यू 8. 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है? टाइम इज इन ईयर, एज आई सेड. तो देखो ईयर, एक साल में कितने दिन होते? 365 डेज. और एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. अगेन 24 आवर को मुझे क्या करना है? सेकंड में लाना. तो 24 आवर इंटू 60 दैट विल इन 1 मिनट. फिर 1 मिनट को हमें सेकंड में लाना, दिस इज इंटू 60. तो ये क्या हो जाएगा? इन सेकंड. इस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, सारे को कैलकुलेट करने के बाद दिस इज स्पीड, दिस इज ईयर मीन्स नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, दिस इज नंबर ऑफ आवर इन अ डे, दिस इज सेकेंड एंड दिस इज मिनट एंड दिस इज सेकेंड. तो इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगा 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर. आर यू गेटिंग मी ना? ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप कि लाइट ईयर को किस तरीके से हमने डिस्टेंस के टर्म में डिफाइन करा. ठीक है, दिस इज 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12 किलोमीटर. दिस इज 1 लाइट ईयर. क्लियर है? नाउ अनदर यूनिट जो कॉमनली मेजर करा जाता है, देखो लाइट ईयर एक यूनिट है, जैसे आप मेजर करते हो ना डिस्टेंस इन मीटर, फिर उसके बाद किलोमीटर. तो लाइक दिस देयर अनदर यूनिट जो कि मेजर करा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को, दैट वेरी ह्यूज डिस्टेंस को जो मेजर करा जाता है, दैट इज पारसेक. ठीक है, पारसेक. तो देखो पारसेक, 1 पारसेक इज इक्वल टू लाइट ईयर को तो मैं बता दिया हूँ किस तरीके से कैलकुलेशन होगा. लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर. ठीक है, 1 लाइट ईयर को किस तरीके से कैलकुलेट करोगे? उसके बाद पारसेक, 1 पारसेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर. ठीक है, 3.26 मीन्स अगर मैं पूछूं 1 पारसेक
को लाइट ईयर में 3.26 इंटू लाइट ईयर, ठीक है, ये लाइट ईयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या मिल जाएगा, 1 पारसेक मिल जाएगा। क्लियर है ना। अब देखो, अब इसके बाद मैं बात करता हूं दैट एक और यूनिट होती है लाइट मिनट, ठीक है, दिस लाइट मिनट। तो लाइट मिनट क्या है, लाइट जो कि आप देख रहे हो ये बेसिकली बात हो रही डिस्टेंस की, तो यहाँ पे लाइट है और सेकेंड इज मिनट है, तो लाइट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, एंड मिनट इज टाइम। तो मैं बोल सकता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 मिनट। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, तो डिस्टेंस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। क्लियर है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, दैट वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना, वेलोसिटी इनटू टाइम हो गया, डिस्टेंस इज इक्वल टू। अब देखो वेलोसिटी क्या मैं बोला था अभी, दैट इज 30000, ठीक है ना, दिस इज इन किलोमीटर पर सेकेंड। क्लियर है ना, दिस इज इन किलोमीटर पर सेकेंड इनटू टाइम, टाइम क्या होगा, दैट इज 1 मिनट। तो 1 मिनट को मुझे सेकेंड में लाना, दिस इज 60 सेकेंड, ठीक है। देखो वेलोसिटी किस में मिला, दिस इज इन किलोमीटर, ठीक है ना, ये किलोमीटर हो गया अपॉन सेकेंड। तो देखो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने से 18 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर, दिस इज द वैल्यू, ठीक है, दिस इज 1 लाइट मिनट, ठीक है। तो हमारे पास 3 यूनिट हो गए, द फर्स्ट यूनिट इज दैट इज लाइट ईयर, सेकेंड यूनिट इज दिस पारसेक एंड थर्ड यूनिट इज लाइट मिनट। क्लियर है, तो दिस इज द थिंग अबाउट द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। क्लियर है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट स्टार। अब मुझे क्या पढ़ना, स्टार्स के बारे में पढ़ना। बेसिकली अब जब मैं बोला था स्टार्टिंग में चैप्टर को जब आप रीड करोगे तो जब आप नाइट में आफ्टर इवनिंग आप ऊपर देखते हो आसमान के साइड में तो आपको नंबर्स ऑफ स्टार्स दिखते हैं, ठीक है, दिस इज द स्टार्स, वही हमें स्टडी करनी है, ठीक है। स्टार क्या होती है, स्टार आर हेवनली बॉडीज दैट आर एक्सट्रीमली हॉट एंड गिव्स आउट लाइट ऑफ देयर ओन। मीन्स स्टार क्या होते हैं, एक्सट्रीमली बहुत ही हॉट होते हैं और वो क्या करते हैं, वो ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट देते हैं, वो उनकी खुद की लाइट होती है, ठीक है। जो आपको स्टार रात में दिखते हैं ना वो उनकी खुद की लाइट होती है। क्लियर है। अब देखो स्टार जो है ना वो किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, ठीक है। स्टार आर मेनली मेड अप ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जो आपको स्टार रात में दिखाई देती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। अब देखो इनसाइड स्टार हाइड्रोजन गैस होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन गैस में क्या होता है, एक रिएक्शन होता है दैट इज फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। स्टार में क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है और उस फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या, दैट हाइड्रोजन गैस जो कि अवेलेबल है इन स्टार दैट गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम, ठीक है। जब वो फ्यूजन रिएक्शन होता ना तो हाइड्रोजन गैस हीलियम में कन्वर्ट होता। अब जब हीलियम में कन्वर्ट हो रहा ना तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, उस वक्त ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जो कि आप देख सकते हो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, विच गिव्स एज अ हीट एंड लाइट, जो कि हीट और लाइट देता है, जो कि हमें विजिबल होता है स्टार, दैट्स व्हाई स्टार इज विजिबल टू अस। क्लियर है ना। स्टार किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन गैस से बने होते हैं, उनमें केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू होता रहता है एंड दैट हाइड्रोजन गैस कन्वर्टेड इनटू हीलियम एंड बाय दैट रिएक्शन प्रोसेस इज फ्यूजन रिएक्शन। क्लियर है ना। और क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब देखो अब जो स्टार होती है ना, अलग अलग स्टार की अलग अलग टेम्परेचर होगी, ठीक है। तो अलग अलग टेम्परेचर होने से होगा क्या, अलग अलग टेम्परेचर होने से स्टार की जो कलर होगी ना वो अलग अलग होगी जनरली, ठीक है ना। अब देखो सन भी हमारा एक स्टार है ना, कैसा स्टार है, येलो स्टार है, ठीक है। कैसा स्टार है, येलो स्टार है। मैं बोला कलर डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। जब मैं कलर बोल रहा हूं येलो, इसका मतलब सन के पास क्या होगा, कुछ टेम्परेचर होगा। अगर अर्थ की सन की सरफेस टेम्परेचर की मैं बात करूं ना, दिस इज 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सन सरफेस। क्लियर है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टार, ठीक है। स्टार आर हेवनली बॉडीज, ठीक है। सन भी हमारा क्या, एक स्टार है। क्लियर है। नाउ अब देखो कुछ क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि क्या होते हैं, ठीक है ना। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या,
व्हाई डू स्टार अपीयर टू अस लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन है क्या कि आप जब स्टार को देखते हो, स्काई में स्टार को देखते हो, तो वो आपको बहुत ही छोटा दिखता है, एक पॉइंट के जैसा दिखता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। देखो, आप और मेरे बीच में सपोज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस है, छोटा डिस्टेंस है, तो आपको मैं देख पाऊंगा और मेरे को आप देख पाओगे। अब जैसे जैसे मैं आपसे दूर जाता जाऊंगा तो मेरी जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो मेरी साइज है, वो क्या होगी, डिक्रीज होते जाएगी। अब धीरे 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 और भी साइज डिक्रीज होते जाएंगे। एक टाइम आएगा ना जब मैं इतना ज्यादा दूर हो जाऊं ना, तो क्या होगा, मैं आपको कैसा दिखूंगा, एक छोटे से पॉइंट के जैसा दिखूंगा। ठीक है ना, तो यही रीजन है, स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। ठीक है ना, द स्टार अपीयर टू अस पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, वी आर ऑन अर्थ, हम लोग कहां पे, अर्थ पे है, और वी आर द ऑब्जर्वर, कौन ऑब्जर्व कर रहा, हम ही ऑब्जर्व कर रहे। ठीक है ना, तो हमारे और स्टार के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस है ना, दैट बिकॉज ऑफ दैट स्टार अपीयर्स पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। नाउ सेकेंड पॉइंट क्या है, दिस व्हाई डज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टार डज नॉट चेंज व्हेन दे व्यू फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर दो स्टार हैं, ठीक है, दो स्टार हैं, अगर आप उसको अर्थ से देख रहे हो तो क्यों उनकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। क्लियर है ना, उनकी पोजीशन क्यों चेंज नहीं होती है। अब देखो क्यों चेंज नहीं होती है, क्योंकि दोनों स्टार है ना, मैं दो स्टार की, बहुत सारे स्टार हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ स्टार हैं, बट मैं दो स्टार की एग्जांपल ले रहा हूं। दो स्टार है, आपस में इनकी क्या होगी, मोशन होगी कुछ। ठीक है, ये मूव कर रहे होंगे कंटिन्यूअसली, बट जब आप देखोगे ना, आपके और स्टार के बीच में इतना ज्यादा डिस्टेंस है ना कि वो जो मूवमेंट है ना वो ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। ठीक है ना, वो जो मूवमेंट है ना वो ज्यादा अप्रिशिएबल नहीं होगा। ठीक है, यू कैन नॉट कैलकुलेट दैट वैल्यू, दैट्स वाई वो क्या होता है ना कि बहुत ही उसी पॉइंट पे अप्रॉक्स आपको दिखेगा। ठीक है, तो रीजन क्या है, देखो स्टार आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट अ वेरी हाई स्पीड। अभी मैं बोला कि स्टार्स जितने ना वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो मोशन कर रहे हैं। ठीक है, बट हाउएवर व्हेन व्यू फ्रॉम द अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन देम डज नॉट सीम टू चेंज। अर्थ से जब देखोगे ना तो ये ऑब्जर्व नहीं होगा, ये आप देख नहीं पाओगे कि उनकी डिस्टेंस चेंज हो रही है। ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमारे से बहुत ज्यादा ही डिस्टेंस पे है। क्लियर है, अभी बताया मैं। इसके बाद अब यही रीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन क्या, थर्ड क्वेश्चन व्हाई डू द स्टार अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, अब देखो जब आप स्टार को देखते हो, मैं बोला सन भी एक स्टार है, तो जब आप स्टार को देखते हो या सन को देखते हो तो वो कैसा अपीयर होता, वो फील होता आपको कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ठीक है ना, तो रीजन एक्चुअली है क्या ना, अर्थ ना अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। एक्सिस कौन सा एक्सिस, अगर मैं अर्थ की डायग्राम बनाऊं ना तो अर्थ कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है ना, और ये हुआ एक्सिस, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, अर्थ का ये साउथ पोल होगा। ठीक है ना, अर्थ का ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब देखो ये अर्थ अपने एक्सिस पे, सपोज मैं अर्थ हूं, ठीक है ना, सपोज मेरी नॉर्थ पोल ये टिप है, ये साउथ पोल मेरा लेग है। ठीक है ना, तो अब देखो जो अर्थ की मूवमेंट होगी ना वो कैसे होती है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है वो, तो ये अपनी एक्सिस से इस तरीके की रोटेशन हो रही है। क्लियर है ना, समझ रहे हो ना, वो अपने एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। अब जब ये रोटेट कर रहा, ठीक है, तो वो कैसे रोटेट कर रहा, ये अर्थ की रोटेशन जो होती है ना वो वेस्ट टू ईस्ट होती है। ठीक है, या अगर मैं इधर ईस्ट बना दूं तो ये ईस्ट टू वेस्ट होती है। ठीक है, समझ रहे हो ना, अर्थ की जो रोटेशन होगी ना वो किधर से किधर होगी, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन होता है अर्थ और किसी भी स्टार के बीच में, तो बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन अर्थ किधर से जा रहा, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा, तो जो दूसरे प्लैनेट होंगे वो कैसे दिखेंगे और दूसरे स्टार होंगे वो कैसे दिखेंगे, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता हुआ। दैट्स वाई देखो इट इज बिकॉज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स नॉर्थ साउथ एक्सिस, जो अभी मैं बताया नॉर्थ साउथ एक्सिस के अबाउट वो रोटेट करती है। ठीक है ना, ड्यू टू द रिलेटिव मोशन, ड्यू टू दिस रिलेटिव मोशन, ठीक है, ऑल हेवनली बॉडीज स्टार प्लैनेट मून अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर है ना। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज
द पोल स्टार, ठीक है, जो पोल स्टार होता है ना, पोलराइज और ध्रुव तारा, नॉट चेंज इट्स पोजीशन इन द स्काई, वो अपनी पोजीशन, आप जब रात में देखोगे ना पोल स्टार को देखोगे ना, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, ठीक है, जहां पे ना उसी पोजीशन पे उसी पॉइंट पे वो रहता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? तो उसके पीछे रीजन क्या है ना, कि पोल स्टार जो है ना वो कहाँ पे होता है, जस्ट अबव द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है ना, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, इसके ऊपर ही रहता है, ठीक है। अब देखो अर्थ की रोटेशन हो रही, सपोज ये स्टार है, ये स्टार को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ ना, अब देखो ये स्टार, ये मैं तो घूम रहा हूँ, लेकिन मेरे रिस्पेक्ट में या किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अर्थ का क्या होगा, ये यहीं पे पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि वो एक्सिस के अलोंग ही लाई कर रहा है, तो मोशन इस पॉइंट का होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, बट ये इसके रिस्पेक्ट में वहीं पे रहेगा, ठीक है ना। तो यही रीजन है कि वो पोल स्टार क्या होता है, कि अपीयर होता है स्टेशनरी, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही वो रहता है, ठीक है ना। कहाँ पे रहता है, दैट इज जस्ट ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल के ऊपर में रहता है, ठीक है। तो रीजन देखो क्या लिखा हुआ है, द पोल स्टार इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन विच इज डायरेक्टली अबव द ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है, मैं बोला था नॉर्थ पोल ये होता है इसके जस्ट ऊपर ऑफ द अर्थ, ठीक है। Thus its position relative to the earth does not change and hence its appear stationary, और अर्थ के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, दैट्स व्हाई इट्स appear stationary, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ठीक है, ये पॉइंट है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोल स्टार हेल्प ट्रैवलर एंड सेलर एट नाइट, ठीक है। ट्रैवलर जब रात होती है ना, अभी तो हमारे पास क्या मोबाइल है, ठीक है ना, जो कि मैग्नेटिक कंपास पे बेस होता है, उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास आ गई थी जो कि डायरेक्शन बता देता था, ठीक है। बट पहले के टाइम में, ठीक है ना, जो सेलर होते थे ना, जो ट्रैवलर होते थे ना, उनके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जिससे कि वो डायरेक्शन को पता लगा पाए, ठीक है ना। तो पता लगाने के लिए उन्होंने क्या करा, वो नॉर्थ पोल की, सॉरी पोल स्टार की, ठीक है ना, वो पोल स्टार की हेल्प लेते थे। कैसे हेल्प लेते थे पोल स्टार की, क्योंकि मैं बोला कि पोल स्टार जो होता है, जो पोल स्टार होता है वो कहाँ पे होता है, इस पोजीशन पे, नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल और साउथ पोल जस्ट यहाँ पे, ठीक है। तो पोल स्टार की डायरेक्शन अर्थ के रिस्पेक्ट में फिक्स होगी, दैट इज ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल पे होगा, ठीक है, ऊपर की तरफ, क्लियर है। अब जब अर्थ रोटेट करेगा, आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, बट क्या है, पोल स्टार को आप देखोगे तो आपको डायरेक्शन पता लग जाएगा, नहीं, पोल स्टार मींस दिस इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, आपकी मूवमेंट उस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है, सेम थिंग, दैट इज द पोल स्टार ऑलवेज पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, ठीक है। दस लुकिंग एट द पोजिशन ऑफ पोल ड्यूरिंग द नाइट, ठीक है, उस पोल स्टार को रात में देख करके वन कैन इजिली फाइंड द ज्योग्राफिक डायरेक्शन एंड हेंस टेक अ करेक्ट रूट, ठीक है ना। तो वो पोल स्टार को देख करके कोई भी करेक्ट रूट और करेक्ट डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, ठीक है, कौन सा स्टार है जो अर्थ के सबसे क्लोज है, ठीक है। तो सन इज द नियरेस्ट स्टार ऑफ अर्थ, ठीक है, द सन देखो, ठीक है ना, सन एक स्टार है जो कि सबसे नियरेस्ट है किसके, अर्थ के, ठीक है। एंड द नेक्स्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी, ठीक है ना, एंड प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। तो दिस इज द नेक्स्ट स्टार विच इज क्लोज टू अर्थ, ठीक है ना। तो सबसे क्लोज कौन सा स्टार है, दैट इज अर्थ, क्लियर है। क्वेश्चन आएगा विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, देन दैट इज द आंसर इज सन, ठीक है। नाउ हाउ फार इज द सन फ्रॉम द अर्थ इफ द लाइट फ्रॉम इट रीचेस अस इन 8.3 लाइट मिनट। देखो पूछ रहा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज डिस्टेंस, ठीक है ना, डिस्टेंस ऑफ सन टू अर्थ, ठीक है ना, अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है, क्लियर है ना, अर्थ से सन की डिस्टेंस क्या है। कंडीशन क्या है कि वो बताया है कि जो सन से जो लाइट आती है ना वो कितने देर में रीच करती है, दैट इज 8.3 लाइट मिनट, ठीक है ना। मींस क्या है, अब देखो 8.3, ठीक है, 8.3 लाइट मिनट। अब देखो इस लाइट मिनट को किस तरीके से कैसे करके एक्सप्लेन करोगे, लाइट मिनट को देखो, ठीक है, लाइट मिनट को किस तरीके से करोगे, यहां पे बोल रखा है दैट इज
कितने टाइम में आता है? 8.3 लाइट मिनट, ठीक है ना। अब देखो मुझे मालूम है 8.3 तो वैल्यू वो बता दिया कि डिस्टेंस इतना लग रहा है, ठीक है ना। 8.3 लाइट मिनट, लाइट मिनट की वैल्यू मैंने आपको बता रखा था। लाइट मिनट मीन्स 3 इंटू 10⁸ अगर मैं लिख रहा हूँ मीटर पर सेकेंड में तो, या 5 दैट इज इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। अब देखो लाइट की ये स्पीड हो गई, ठीक है। अब मिनट को मुझे क्या करना, सेकेंड में चेंज करना, 60 सेकेंड। तो ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। अब जब ये वैल्यू मिल जाएगी तो आप अप्रॉक्स मीन्स दैट इज अप्रॉक्स ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज दैट डिस्टेंस, ठीक है ना, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। तो ये अर्थ से सन के बीच का यही डिस्टेंस है, ठीक है ना, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होता कि हाउ फार इज द नियरेस्ट स्टार, ठीक है ना, नियरेस्ट स्टार अल्फा सेंचुरी, ठीक है ना, फ्रॉम द अर्थ इन किलोमीटर। अब अर्थ से अल्फा सेंचुरी का आपको डिस्टेंस बताना है और कंडीशन क्या है कि वो 4.3 लाइट ईयर्स का क्या है वो डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो 4.3 लाइट ईयर, देखो अल्फा सेंचुरी टू अर्थ। अब 4.3 एज इट इज रहने दो आप। लाइट ईयर की वैल्यू क्या होती है? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है, 40.678 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम दैट अल्फा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। तो दिस इज द कैलकुलेशन, ठीक है ना, समझ आया ना। नाउ अब देखो गैलेक्सीज की बात करते हैं अपन, ठीक है, व्हाट इज गैलेक्सीज, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स गैलेक्सी से मिलके बने हुए हैं। अब एक गैलेक्सी नहीं है, देयर आर नंबर्स ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है ना, देयर आर नंबर ऑफ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या होगा? देखो गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या है ना, इट इज इनॉर्मस क्लस्टर ऑफ बिलियन ऑफ स्टार दैट हेल्ड टुगेदर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। अब आपको मालूम है that next higher standard you will reach, then you will read that about the gravitational force, ठीक है। दो बॉडीज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, दो बॉडी के बीच में क्या एक्ट करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है ना कि लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ और बिलियंस ऑफ स्टार जो कि एक दूसरे के क्लोज में रहते हैं, ठीक है, दे फॉर्म अ ग्रुप ऑफ स्टार आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो बाय द दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसे क्या बोला जाता है? गैलेक्सी बोला जाता है, क्लियर है ना। अब देखो, अब मैं बोला था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ही गैलेक्सी हैं। अब गैलेक्सी के अंदर क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ स्टार होते हैं। तो मैं अगर टोटल नंबर ऑफ स्टार यूनिवर्स में बोलूँ ना, दैट इज 10⁻22। The total number of star in the universe are about 10⁻22। सोच लो 10⁻22 कितने होते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ ना 1 0, ये 10 हो गया। इसी तरीके से मैं जीरो लगाऊँ, टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 22 होंगे। सोच लो, लगाते जाओ लगाते जाओ लगाते जाओ, अप्रॉक्स कितने आएंगे? 22। सोच लो कितने नंबर्स ऑफ स्टार हैं यूनिवर्स में, ठीक है ना। नाउ अब देखो, जो बेसिकली नंबर्स ऑफ गैलेक्सी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, गैलेक्सी भी, बट हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलेक्सी है ना, दैट इज 2 गैलेक्सी। द फर्स्ट वन इज मिल्की वे गैलेक्सी एंड द सेकेंड वन इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ठीक है ना। द फर्स्ट वन इज मिल्की गैलेक्सी एंड द सेकेंड वन इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी। तो जो ये गैलेक्सी है ना, ये बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, हबल, अमेरिकन आप बोल सकते हो, दैट इज एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है ना, अमेरिकन, क्योंकि साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर में डिफरेंस है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर जो हेवनली बॉडी की स्टडी करता, ठीक है ना, यूनिवर्स की स्टडी करता। तो ये जो एस्ट्रोनॉमर थे ना, हबल, इन्होंने क्या किया ना, स्टडी करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंक्लूजन ड्रॉ किया। और वो ड्रॉ करने के बाद उन्होंने क्या बोला ना कि जो गैलेक्सीज है ना, हमारी जो गैलेक्सी, उनको ना उन्होंने 3 कैटेगरीज, डिफरेंट 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप, ठीक है। शेप के बेसिस पे, गैलेक्सी की शेप के बेसिस पे उन्होंने क्या करा ना, 3 डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट वन इज, देखो यहाँ नहीं, हाँ, स्पेरिकल, ठीक है, ये स्पेरिकल गैलेक्सी हो गया, ठीक है। उसके बाद इलिप्टिकल एंड द लास्ट वन इज
दैट इज इरेगुलर, ठीक है ना। इरेगुलर का मतलब क्या है, कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं है, मीन्स किसी पर्टिकुलर सिमेट्री की नहीं है, ठीक है ना, दैट इज इरेगुलर। फर्स्ट मैंने क्या बोला, हबल ठीक है ना, उन्होंने क्या करा ना, स्टडी करने के बाद गैलेक्सी को अकॉर्डिंग टू देयर शेप उन्होंने क्या करा, डिवाइड करा 3 डिफरेंट कैटेगरी में। द फर्स्ट वन इज दैट इज स्फेरिकल, एंड द सेकेंड वन इज इलिप्टिकल, एंड द थर्ड वन इज एनी इरेगुलर शेप, ठीक है ना। अब देखो, अब इस तरीके से डिवीजन होने के बाद देखो 3 शेप जो मैंने बताया उस शेप के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं दैट इज स्फेरिकल गैलेक्सी की, ठीक है ना, सॉरी स्पाइरल गैलेक्सी की, ठीक है। स्पाइरल गैलेक्सी होता क्या, ठीक है, स्पाइरल गैलेक्सी बेसिकली जिसकी शेप स्पाइरल, ठीक है ना, स्पाइरल जो कि स्पाइरल शेप का हो, ऐसे गैलेक्सी को स्पाइरल गैलेक्सी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो स्पाइरल गैलेक्सी जो है वो आप देखोगे ना, टोटल जितने भी गैलेक्सी है ना 80% ऑफ गैलेक्सीज आर स्पाइरल गैलेक्सी, ठीक है। 80% जो गैलेक्सी है ना वो कैसे हैं, स्पाइरल गैलेक्सी है। और जो उनकी डायमीटर होती है ना दैट इज फ्रॉम 20,000 टू 100,000 लाइट ईयर की डायमीटर होती है उन गैलेक्सी की जो स्पाइरल गैलेक्सी है, ठीक है ना, अप्रॉक्स, क्लियर है ना। और जो हमारा गैलेक्सी है ना मिल्की वे गैलेक्सी, वो भी किस शेप का है, दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी का शेप का है, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी जो हमारी गैलेक्सी है ना जिसमें हमारा सोलर सिस्टम आता, अर्थ आता है ना, वो कैसे गैलेक्सी है, दैट इज मिल्की वे गैलेक्सी, क्लियर है। नाउ इलिप्टिकल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी की तो बात हो गई, अब इलिप्टिकल गैलेक्सी की बात करते हैं, ठीक है। इलिप्टिकल गैलेक्सी ऐसे गैलेक्सी जिसकी शेप कैसे हो, इलिप्स के फॉर्म में हो, ठीक है, इलिप्टिकल शेप की हो, दैट इज इलिप्टिकल गैलेक्सी, ठीक है। अब देखो मैं बोला 80% ये है, ठीक है ना, दैट इज स्पाइरल, तो 20% जो रेस्ट है ना उसमें 18% और मे भी थोड़ा ज्यादा, ठीक है ना, 18% जो गैलेक्सी होते हैं ना वो देखा गया है दैट इज कैसे होते हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सी होते हैं, ठीक है ना। वो कैसे गैलेक्सी होते हैं, इलिप्टिकल गैलेक्सी होते हैं। अब नाउ लास्ट वन इज दैट इज इरेगुलर। अब देखो इरेगुलर जो गैलेक्सी है ना, इरेगुलर गैलेक्सी की बात करो तो वो 2% और लेस देन 2%, ठीक है ना, अप्रॉक्स मैंने इसलिए लिखा 2%, ठीक है ना। 2% जो गैलेक्सी बचे हैं ना दैट इज इरेगुलर, किसी पर्टिकुलर सिमेट्री की नहीं होगी, ठीक है ना। द स्मॉलेस्ट गैलेक्सी, क्यों, लैक ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म आर कॉल्ड इरेगुलर गैलेक्सी, ठीक है ना। लैक ऑफ सिमेट्रिकल मतलब किसी पर्टिकुलर शेप का नहीं है, इरेगुलरिटी में है, ठीक है, दैट इज इरेगुलर गैलेक्सी। अब यहाँ पे देखो, अब जो इरेगुलर गैलेक्सी है ना दे आर फॉर्म्ड, मीन्स दे इरेगुलर गैलेक्सी की जब स्टडी हुआ तो देखा गया क्या कि उसमें है ना लॉट्स ऑफ डस्ट एंड लार्ज नंबर ऑफ ब्लू स्टार आर प्रेजेंट, मीन्स लॉट ऑफ डस्ट बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल एंड ब्लू स्टार आर इन दैट गैलेक्सी, ठीक है। तो बेसिकली जो हमें पढ़ना है, मीन्स मैं बोला अभी हमारा सोलर सिस्टम, हमारा जो अर्थ वो किसके अंदर आता है, दैट इज स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर आता है, ठीक है। तो स्पाइरल गैलेक्सी के अंदर मीन्स कौन है, मिल्की वे, ठीक है, वी आर द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमें पढ़ना कौन किस तरीके का, स्पाइरल गैलेक्सी, स्पाइरल गैलेक्सी में कौन सी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, क्लियर है ना। नाउ द मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी देखो, मिल्की वे गैलेक्सी हेजी ल्यूमिनस बैंड ऑफ व्हाइट लाइट सीम स्ट्रेच अक्रॉस द स्काई एट नाइट, ठीक है। ये गैलेक्सी है ना, ये हेजी ल्यूमिनस लाइट जो होती है ना वो स्ट्रेच होती है इन अ नाइट स्काई, दैट गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। मिल्की वे गैलेक्सी बेसिकली जो वर्ड है ना मिल्की वे, ठीक है, मिल्की वे ये आया कहाँ से, ग्रीक वर्ड से आया, ठीक है, गाला, GALA, गाला, ठीक है, गाला वर्ड से ये मिल्की वे गैलेक्सी आया, ग्रीक वर्ड। और गाला का मीनिंग क्या होता है, मिल्क होता है, ठीक है ना, गाला का मीनिंग क्या होता है, मिल्क होता है, दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी बिकॉज इट इज व्हाइट लाइट इमिटिंग, ठीक है ना, वहां से बहुत ही व्हाइट लाइट इमिट हो रहा था, ठीक है, लुमिनस मींस दैट इज विजिबल टू अस, ठीक है ना। अब देखो मिल्की वे गैलेक्सी को जो इंडिया में, वी आर द इंडियंस, ठीक है, इंडिया में नाम देते हैं ना अकॉर्डिंग टू इंडियंस, ठीक है, इंडियंस अपने अपने नाम देते हैं, तो इंडिया में मिल्की वे गैलेक्सी को नाम क्या दिया गया, आकाश गंगा, क्लियर है। और जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, मैं बोला था अभी, ठीक है, कि अर्थ, ठीक है, आवर सोलर सिस्टम दैट इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। अब देखो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, मिल्की वे गैलेक्सी कंटेन मोर देन
100 बिलियंस ऑफ स्टार, सोच लो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर कितने हैं, 100 बिलियंस ऑफ स्टार से ज्यादा स्टार हैं, ठीक है, 100 बिलियंस ऑफ स्टार, उससे ज्यादा, ठीक है, मोर देन 100 बिलियंस ऑफ स्टार, ठीक है। नाउ मिल्की वे इज कॉल्ड आवर गैलेक्सी, व्हाई आवर गैलेक्सी, बिकॉज आई सेड दैट दिस आवर गैलेक्सी, क्यों, क्योंकि ये जो है ना, देख रहे हो, इससे लिंक करो आप ये दोनों में, ठीक है, दैट आवर सोलर सिस्टम इज द पार्ट ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी, दैट्स व्हाई दिस मिल्की वे गैलेक्सी इज आवर गैलेक्सी, इसलिए ये हमारा गैलेक्सी है, ठीक है ना। नाउ ये भी बोला था मैं पहले कि मिल्की वे इज द स्पाइरल गैलेक्सी, उसकी शेप कैसी है, स्पाइरल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, ठीक है, स्पाइरल है इन द फॉर्म ऑफ डिस्क, जो कि बल्ज है एट द मिडिल, बल्ज एट द मिडिल एंड बल्ज एट द मिडिल मीन सेंटर, ठीक है, एंड टैपिंग ऑफ टुवर्ड्स द एज, और एज के साइड कैसा टैपिंग ऑफ है, ठीक है, दिस इज द शेप बेसिकली, दैट इज द स्पाइरल, ठीक है ना, स्पाइरल शेप में है, कौन है, मिल्की वे गैलेक्सी, हमारा गैलेक्सी, क्लियर है। नाउ कॉन्स्टिलेशन, अभी तक हमने देख लिया दैट इज अबाउट द स्टार, ठीक है, और क्या स्टार क्या होते हैं, ठीक है ना, सन भी हमारा स्टार है, ठीक है, और जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है टू द अर्थ दैट इज सन, ठीक है ना, नेक्स्ट स्टार दैट इज आपने देख रखा है दैट इज क्या होता है, अल्फा सेंट्यूरा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने स्टार के बारे में स्टडी कर लिया, फिर हमने देखा अबाउट द गैलेक्सीज, ठीक है ना, कि गैलेक्सी होती क्या है और गैलेक्सी को हमने किस तरीके से डिवाइड करा है, ठीक है ना, गैलेक्सी में होता क्या है, स्टार्स होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके से गैलेक्सी को भी हमने डिवाइड करा अकॉर्डिंग टू देयर शेप, और गैलेक्सी के बारे में स्टडी कर लिया हमने, ठीक है, और कुछ पॉइंट्स भी हमने डिस्कस करा दैट कि हमें स्टार, ठीक है, वो स्मॉल साइज पॉइंट ऑब्जेक्ट की जैसा क्यों दिखता है, ठीक है, पोल स्टार क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने देख रखा। नाउ कम टू कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दिस इज कॉन्स्टिलेशन। ये कॉन्स्टिलेशन होता क्या, ठीक है, बेसिकली कॉन्स्टिलेशन a group of star which are arranged in pattern resembling some recognizable figure is called constellation। देखो कॉन्स्टिलेशन क्या है, मैंने डेफिनेशन पढ़ दिया, ठीक है, अब ये कॉन्स्टिलेशन क्या है, कॉन्स्टिलेशन अ ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार विच आर अरेंज इन पैटर्न, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टार, कुछ स्पेसिफिक स्टार होंगे, ठीक है, नंबर्स ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग अ स्पेसिफिक पैटर्न, ठीक है, दे आर फॉर्मिंग ए स्पेसिफिक पैटर्न जो कि रिकॉग्नाइज हो दैट पैटर्न, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। मतलब स्टार अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में है और वो ग्रुप किसी पर्टिकुलर शेप में है जो कि आप रिकॉग्नाइज कर पाओ, देन दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, क्लियर है ना। नाउ अब कॉन्स्टिलेशन तो ये हो गई, अब देखो देयर आर 88 नंबर्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना, अभी तक जो भी कॉन्स्टिलेशन की बातें हुई ना, रिजेंबल हुई ना, दैट इज 88, ठीक है ना, अबाउट 88 कॉन्स्टिलेशन, ठीक है ना, देयर आर अबाउट 88 कॉन्स्टिलेशन दैट वी नो, ठीक है, ऑल द स्टार इन अ कॉन्स्टिलेशन अपीयर स्टे टुगेदर सो इट्स शेप रिमेन द सेम। अभी मैं बोला कि स्टार क्या होंगे, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है ना, सो दैट कि उनकी जो पर्टिकुलर शेप हो रही है ना वो हमें विजुअलाइज हो पाए, क्लियर है ना। अब देखो हम सारे 88 कॉन्स्टिलेशन को तो पढ़ नहीं सकते हैं, सो वी हैव टेकन सम फ्यू और दैट 4, ठीक है, 4 कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, दैट इज ओरायन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड कैसोपिया, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ स्टार दैट फॉर्मिंग अ स्पेसिफिक पैटर्न इन स्काई दैट इज कॉन्स्टिलेशन, और जो 4 ऐसे बेसिकली 88 कॉन्स्टिलेशन है, बट हमें पढ़ना कितना, 4 पढ़ना, ठीक है ना, दैट इज ओरायन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर एंड कैसोपिया, ठीक है ना। अब देखो एक एक करके सारे को डील करते हैं, ठीक है। ओरायन, ओरायन देखो, ओरायन क्या है ना, ओरायन इज वन ऑफ द मैग्निफिकेंट कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई, ठीक है। अब देखो ये जो मैग्निफिकेंट इसलिए बोला जा रहा ना क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है दैट जो होते हैं ना फाइटर, ठीक है ना, फाइटर, उस चीज को रिप्रेजेंट करता है ये, ठीक है। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करता है ये, इट कंसिस्ट ऑफ 7 ब्राइट स्टार, ठीक है, देखो कैसे,
कुछ इस तरीके का शेप में, ठीक है, आपको दिख रहा होगा दिस इज अ काइंड ऑफ बेल्ट, ठीक है, और इस तरीके का बेसिकली इट इज अ काइंड ऑफ हंटर, जो हंटर होते हैं ना, देखते हो वो इस तरीके से बो लिए होते हैं, ठीक है ना, एंड इस तरीके से एरो लिए रहते, तीर धनुष, ठीक है, सॉवर्ड होते हैं, ठीक है। अब देखो इस तरीके की उनकी जो मतलब आप बोल सकते काइंड ऑफ उनके जो मुकुट होते हैं, ठीक है ना, तो इस तरीके का आपको कुछ पर्टिकुलर शेप का दिख रहा है ना, ठीक है ना, तो देखो दिस इज दैट, ठीक है, ये उनकी लेग्स हो गई, ये उनके बेल्ट हो गया, ठीक है ना, तो ये पर्टिकुलर शेप जो फॉर्म कर रहा है ना दैट इज द ओरायन, ठीक है, ये पर्टिकुलर शेप दैट गिव्स द अस अबाउट और टॉक्स अबाउट द हंटर, ठीक है, जायंट हंटर के फॉर्म में, ठीक है ना, किस तरीके से शेप है बता दिया मैं, ठीक है, शॉवर्ड्स वगैरह लिए हुए हैं, क्लियर है, ओरायन। और ये जो बेसिकली ओरायन है ना, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, ठीक है, इन विंटर सीजन, ठीक है, ठंडी के टाइम में बेसिकली इन जनवरी टू मार्च जो देखने को मिलता है दैट इज ओरायन इन नाइट, ठीक है, नाइट के टाइम वो आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है ना, तो दिस इज द ओरायन, स्पेसिफिक फॉर्म, स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ स्टार दैट इज ओरायन, ठीक है ना। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज उर्सा मेजर, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर, ठीक है, उर्सा मेजर को ग्रेट बियर भी बोला जाता है और बिग डिपर और सप्तऋषि, ठीक है, सप्तऋषि तारा आपने सुन रखा होगा, ठीक है ना। उर्सा मेजर कंटेन्स 7 स्टार मेकिंग द पैटर्न ऑफ अ प्लग, ठीक है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंटर ऑफ द प्लग लीड्स टू द पोल स्टार और पोलराइज ध्रुव तारा, ठीक है ना। देखो फिगर देख लो आप, ठीक है, ये जो है ना दिस इज दैट उर्सा मेजर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोला गया था कि एक प्लग की तरह, ठीक है, या आप बोल सकते हो स्पून की तरह, देखो स्पून की तरह आपको दिख रहा ना, ये एक, ये दो, थर्ड, 3, 4, 5, 6, 7 स्टार है ना, इस तरीके से देखो, इस तरीके से अरेंजमेंट एक स्पून की तरह, एक प्लग की तरह, ठीक है ना। दैट स्पेशल अरेंजमेंट, दैट स्पेशल पैटर्न ऑफ दिस स्टार इज कॉल्ड उर्सा मेजर, ठीक है ना। अब देखो ये जो स्टार है और ये जो स्टार है, इन दोनों के बीच का जो लाइन ड्रॉ किया गया ना, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग लाइन, क्लियर है ना, दिस इज कॉल्ड पॉइंटिंग लाइन, ठीक है ना, ये पॉइंटिंग लाइन होती है। और जो ये पॉइंटिंग लाइन ना इस स्टार से यहाँ पे जो मिल रहा है ना, दिस स्टार इज कॉल्ड पोल स्टार, दिस इज द पोल स्टार, ठीक है। देखो एक स्पेशल अरेंजमेंट है ना स्पून की तरह विच कंटेन अ 7 स्टार, तो यही तो था हमारा दैट उर्सा मेजर, ठीक है। देखो इट इज ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर, ग्रेट बियर भी इसे बोला जाता है, ठीक है, और बिग डिपर और सप्तऋषि, ठीक है। उर्सा मेजर कंटेन 7 स्टार, जो कि अभी मैंने डायग्राम में आपको दिखाया था, ठीक है, मैकिंग ए पैटर्न ऑफ प्लग, क्लियर है ना। अब देखो ये जो उर्सा मेजर है ना, ये कहाँ पे कब अपीयर होता है, कब देखने को मिलेगा, इट इज जनरली सीन इन समर डेज, ठीक है, समर टाइम में ये देखने को मिलता है। नाउ उर्सा माइनर, ठीक है, व्हाट इज उर्सा माइनर, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल बियर, क्लियर है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज लिटिल बियर और लिटिल डिपर। तो उर्सा माइनर जो है ना, उर्सा माइनर कंसिस्ट ऑफ अगेन अ 7 स्टार, ठीक है, और सिमिलर तरीके का अरेंजमेंट होता है, जो उर्सा मेजर में देखे थे ना उसी तरीके का अरेंजमेंट इसमें भी होता है, बट द डिफरेंस इज दैट ऑल द स्टार अपीयर्स और ऑल द स्टार आर क्लोजर देन द उर्सा मेजर, ठीक है ना। उर्सा माइनर में जो स्टार है ना, देखो ये स्टार है ना, इस वाले स्टार से ये भी ना स्पून की तरह है, बट देखो इसकी जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 स्टार वो ज्यादा है, बट इसमें क्या है, कम है, क्लियर है ना। अब देखो कम है, और भी क्या डिफरेंस है ना, दे आर द ब्राइटर, ठीक है ना, ये ब्राइट है बट ये लेस ब्राइटर देन दिस, ठीक है ना। देखो यही यहाँ पे लिख रखा, क्या लिखा हुआ देखो, कंसिस्ट ऑफ 7 अरेंज्ड इन अ सिमिलर मैनर टू दोज ऑफ उर्सा मेजर, उर्सा मेजर की जैसा ही बस रिवर्स हो जाता, उल्टा होता, ठीक है ना। बट द स्टार इन दिस कॉन्स्टिलेशन आर क्लोजर टुगेदर, अभी मैं बोला था कि ये स्टार जो है ना वो क्लोजर होंगे एक दूसरे के, ठीक है ना, एंड लेस ब्राइटर देन उर्सा मेजर, और इससे क्या होंगे, लेस ब्राइटर होंगे, ठीक है। दिस दैट उर्सा मेजर इज ब्राइटर बट दिस उर्सा माइनर इज लेस ब्राइटर, और ये पॉइंटिंग लाइन होती है, ज्वाइनिंग लाइन, और ये जो है ना दिस स्टार इज द पोल स्टार, क्लियर है, दिस स्टार इज पोल स्टार, क्लियर है ना। ये कैसे स्टार है, पोल स्टार है, क्लियर है। दिस इज द डायग्राम ऑफ उर्सा मेजर एंड उर्सा माइनर, क्लियर है।
समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ द कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज फोर्थ वन इज कैसोपिया, ठीक है, कैसियोपिया। अब देखो ये जो है ना ये बेसिकली ग्रीक की क्वीन थी, ठीक है, एक ग्रीक की क्वीन थी ना, उसके नाम पे ये पड़ा है, दैट इज कैसियोपिया, ठीक है। वो अब देखते हो ना, आप जनरली देखते हो कि कोई भी चीज़ की इन्वेंशन या कोई भी चीज़ की डिस्कवरी जो करता है उनको ऑनर देने के लिए, ठीक है, उनका नाम दिया जाता है। तो ये जो बेसिकली कैसियोपिया है ना, ये कैसियोपिया क्या है, ये एक कॉन्स्टिलेशन है, मीन्स पर्टिकुलर शेप के, देखो कि पर्टिकुलर पैटर्न के स्टार है जो कि एक पर्टिकुलर शेप में देखा गया, ठीक है ना। और वो कहाँ गया देखा गया, नॉर्दर्न स्काई में देखा गया। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर, और ये विंटर में भी देखा जाता है, ठीक है, मीन्स विंटर में ही देखा जाता है। और कब देखा जाता है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। ऐसा नहीं है कि आप रात में बीच मतलब मिड ऑफ नाइट देखो, ठीक है ना, ये अर्ली पार्ट, रात जैसे स्टार्ट होती ना तो उस वक्त ही ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब ये डिस्टॉर्टेड डब्लू लेटर, ये देख रहे हो ना, डब्लू लेटर के जैसा दिख रहा, तो ये डिस्टॉर्टेड डब्लू लेटर और कैपिटल एम के जैसा, ठीक है। ये बेसिकली देखो ये लाया कहाँ से गया था ना, जो अभी मैं बोला था ना, ग्रीक में एक क्वीन थी, ठीक है ना, वो क्वीन बेसिकली इस तरीके से ना वो चेयर में बैठी हुई थी, ठीक है, देखो देख पा रहे हो ना, इस तरीके से कोई बैठते हैं ना, ऐसे करके पैर को आगे करके थोड़ा बैठते हैं इस तरीके से रिलैक्स मूड में, ठीक है ना, तो वो रिलैक्स मूड है, दैट्स व्हाई दिस इज अ काइंड ऑफ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ स्टार, दैट इज कैसियोपिया, ठीक है। कैसियोपिया का समझ आ गया ना, क्या है कैसियोपिया, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्स्टिलेशन, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टार विच फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर पैटर्न इन अ स्काई, ठीक है, जो कि फिक्स होता है, जो कि एक आप बोल सकते हो कि अप्रिशिएबल होता है, कि आप उसको देख पाओ, ठीक है ना। और हमारे पास 88 कॉन्स्टिलेशन है, बट वी आर रीडिंग दैट 4, फर्स्ट वन इज ओरायन, द सेकेंड वन इज उर्सा मेजर, थर्ड वन इज उर्सा माइनर, एंड फोर्थ one is Cassiopeia. So whatever we read in today's topic or today's lecture, that we have to answer some questions. That first question is, why do star appear to us like point object? Clear है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, why do star appear to us like a point object, ठीक है। तो आंसर, व्हाट इज द आंसर, आप बताओ पहले, ठीक है। मैंने आपको डिस्कस करके बताया भी है कि क्या होते स्टार, व्हाई दैट स्टार अपीयर एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ एंड वी आर इन अर्थ। तो हमारे लिए वो क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस हो गया, दैट्स वाई वो स्टार कैसा दिखता है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, क्लियर है ना। तो आंसर देखो, इसकी आंसर देखो क्या है, द स्टार अपीयर टू अस पॉइंट ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, क्लियर है ना। क्यों स्टार हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है, बिकॉज दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अर्थ, क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू स्टार डज नॉट चेंज व्हेन व्यूड फ्रॉम द अर्थ। दो स्टार के बीच का डिस्टेंस हमें क्यों, दो स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है हमें क्यों चेंज होता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है, वो चेंज हो रहे हैं तो क्यों हमें चेंज होता हुआ दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी आंसर क्या होगी कि वो चेंज एक्चुअली हो रहे हैं, ठीक है, द स्टार के बीच में, दो स्टार या नंबर्स ऑफ स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है ना, सेपरेशन है ना, वो चेंज हो रहे हैं, बट हमें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो हमारी डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अप्रिशिएबल टू अस, ठीक है, वो वी आर नॉट एबल टू पॉइंट आउट, ठीक है ना। देखो आंसर क्या है, द स्टार आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एट अ वेरी हाई स्पीड, ठीक है ना। अब देखो बहुत ही ज्यादा स्पीड से वो मूव कर रहे हैं, हाउएवर व्हेन दे व्यूड फ्रॉम द अर्थ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नॉट seem to be change, ठीक है ना, because they are very far away from us, ठीक है ना। hence any change in the distance between them does not become appreciable in few year or few hundreds of year, ठीक है ना। ऐसा मैं बताया कि स्टार के बीच में रेगुलर मोशन हो रही है, ठीक है, एक दूसरे से रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, बट दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। तो क्या हो रही है, उनकी जो डिस्टेंस की जो चेंज हो रही है ना, जो उनमें डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, दैट इज नॉट appreciable to us, क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, थैंक यू।